Welcome to Maths World YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, share, comment my YouTube channel to get new and innovative content about maths. So, guys, today we will discuss question number 1 of exercise 3.3, chapter number 3, class 10, and it is about the third proportion. Third proportion, the done form of third proportion is A ratio B equals to B ratio C. So, first question is 6 and 12 and you are supposed to find the third proportion. So, आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने माइंड में ये सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि A आपका 6 के बराबर है, B आपका 12 के बराबर. आप उसको सब्स्टिट्यूट करवाएं तो 6 रेशो 12 इक्वल्स टू 12 रेशो सी. सी आपको फाइंड करना होगा जो कि थर्ड प्रोपोर्शन होगा. तो इसी तरीके से मीन्स और एक्सट्रीम वाले तरीके से जाएंगे आप. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दी कि मीन्स में क्या आ रहा है जी 6 इंटू 12 इंटू 12 एंड एक्सट्रीम में आएगा 6 इंटू सी. So it becomes 144 multiplied by 6c, 144 by 6c, and it becomes 24 by 24 is equal to c. So this is the third proportion. Now move to the question number 2, and if you just see, that is about the fourth proportion. In this, you are going to find the fourth proportion. So now let's solve question number 2. That is about the fourth proportion. So now let's start and let's learn the basic concept of the fourth proportion. So let's begin it. Question number 2. That is about fourth proportion. And you know what is the general form of fourth proportion. Don't worry, I will let you know what is the general form of fourth proportion. That is A ratio B proportion C ratio T. Question 1 is 5. Part 1 is 5, 8 and 15. So you are going to find the D1. So how would you place it out? That 5 ratio 8 proportion 15 and this is equals to C. Simple product of means, as we have done already. Product of means equals to product of extreme. So means are actually become 15 multiplied by 8 equals to 5. C. So 15 multiplied by 8 will become, what you can do in the simple way, 15 multiplied by 8 divided by 5 equals to C. 5 on the 5 and 5 3 is 15. 3 8s are 24 is equals to C. So this is our C proportion. Or either you can put X, whatever you want. Now if you move to the third part, and you know that third part is about the mean proportion. So what is the mean proportion? Let's discuss it. It is also, these are all the proportions, and guys, that come in the short questions. The 2 mark short questions, they are having these proportions. In that you are going to find these proportions. Question number 3 is mean proportion. You are going to find the mean proportion. So about mean proportion, and what is mean proportion general form? You will write A ratio M and proportion M ratio B. So part number 1, that is 20 and 45. So guys, what you are going to do is placing the values. So 20 ratio M, proportion M and ratio 45. So according to product of mean and stream, it become M multiplied by M and 45 multiplied by 20. So M become M square and 45 multiplied by 20. It's simple multiplication. You will get
900. Now what you'll do, you'll taking square root, you may write little lines so that it makes good impression and easy for example. So m square root 900 square root. So it will become m is equals to plus minus 330. This is your answer. So it's very simple to solve. Now if you just move to the fourth part, in which you are going to find the continued proportion. That's all based on this. So now let's solve the continued proportion. Question number 4. I guess if you will do ना these proportions, तो आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे ही है, मतलब हर एक के अंदर आपने कुछ चेंजेस करनी होंगी और आपने उनको कर देना होगा. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं जो कि continued proportion का है. continued proportion. आप देखेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा हर एक में कुछ ना कुछ चेंज है, वरना सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर आप देखें तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पहला पार्ट आपके पास क्या रहा है, और इसकी आप जनरल फॉर्म भी देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ. उसमें अगर आप देखें ना तो जनरल फॉर्म आपकी बनती है, आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं और ये पेपर में आज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में, तो वो आपने देख लेना इसकी डेफिनेशन भी. और ये मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिख दी है. जनरल फॉर्म आपके माइंड में रखनी है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी. तो पहला पार्ट अगर आप देखें इसका तो वो है 5p45. या आप सेकंड पार्ट कहते हैं, तो हम क्योंकि सेकंड पार्ट हमने वैसे नहीं किया, ज़्यादा मैंने फर्स्ट पढ़ा है तो मैं आप सेकंड करवा देती हूँ. जो कि 8 है, इसमें x दिया गया है और 18 दिया गया. अब आपने करना क्या होगा, आपने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में इसको मेंशन करना है. जैसे क्या बनेगा, ये 8 रेशो x प्रोपोर्शन x और c 8. ठीक है, इस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे और जब आप इसको लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर बनेगा x इंटू एक्स इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाई 8. तो अच्छा ये x इंटू एक्स है तो आप लोगों को हाँ x स्क्वायर और 18 इंटू 8 बनेगा 144. तो सिंपली आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. यहाँ पे आप टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. टेकिंग स्क्वायर रूट एंड यू कैन राइट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आप दोनों साइड पे ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले रहे हैं और राइट हैंड साइड पे भी ले रहे हैं. तो लिखेंगे आप x स्क्वायर स्क्वायर रूट 144 स्क्वायर रूट. अच्छा मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आपको पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते या इतना प्रॉपर्ली मैथ्स को नहीं करते. तो मे भी उन्हें हो कि क्योंकि मैंने लास्ट वाले में भी नहीं बताया उसको इस सारे स्टेप को, तो मैं इसको एक्सप्लेन करवा देती हूँ. 144 जब आपके पास आ जाएगा, आपको मालूम है कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो लेट स्टार्ट. आपको मालूम है कि जो स्क्वायर रूट होता है ये इसकी पावर होती है 1/2. तो अगर आप देखें x की पावर 1/2 से आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा आपके पास. अब आपने 144 को देख लिया. 144 में आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करना चाहूंगी कि 144 ये वो दूसरा क्वेश्चन है, आप उसको किस तरह सॉल्व करें. 144 है, आपने उसको फैक्टराइज कर लेना. तो आएगा 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 1s are 2 and 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 1s are 3 3s are 3 and 3 1s are 2. तो अगर आप देखें तो इसके जो फैक्टर्स आप बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. वैसे तो आप लोगों को बोर्ड में कैलकुलेटर्स अलाउड है, लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट है. तो याद देखें स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो 2 स्क्वायर आता है, 2 स्क्वायर आता है और 3 स्क्वायर आता है. तो लिख सकते हैं 2 2 are 4 and 12 स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर और अंडर रूट, या यहाँ पे लिख लें 12 का स्क्वायर और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x की आ जाएगी वैल्यू 12. और जब आप स्क्वायर रूट से वैल्यू लाते हैं तो उसके आंसर प्लस और माइनस दोनों में आते हैं. तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको ओवरऑल हमने फाइंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट माय यूट्यूब चैनल टू गेट न्यू एंड इनोवेटिव कंटेंट अबाउट मैथ्स. और आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दे सकते हैं
और अपने हम चैनल को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई सजेशंस हो आप लोगों की और क्वेरीज हों, ऑलरेडी आई मैंने आपको कहा मैथ्स बहुत एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्वेरीज हो जाती हैं, तो अगर आपको क्वेरीज हों तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ को ईजी मैथड में सीख सकें। सो इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, share, comment my YouTube channel to get new and innovative content about maths.